ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ, ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਸਟਮਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਟੂਲ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਡਾ ਲੇਆਊਟ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਰਵਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਨੈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਵਰ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਵਰਡ ਗੱਲ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ capacity can be changed by the changing number of working hours, production rate and production mix। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਵਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੇ, ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਲੇਬਰ ਵਧਾਤੀ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਲੇਬਰ ਘਟਾਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲੂਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਲੱਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੇ ਟਾਈਮਲੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਊਗਾ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈंने ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਬਰੋਡਲੀ ਯੂ ਮੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ।
हाँ हर एक मशीन की कैपेसिटी ਉਹਦੇ ਹਾਵਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਹੋਲਡ ਰਿਸੀਵ ਸਟੋਰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੇਜ਼ਰ ਔਰ ਇਨਪੁੱਟ ਮੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਕਸਡ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੀਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਐਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਡਸ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰਿਪੀਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਰਿਪੀਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ ਮੀਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਲੱਸ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਕਿਨੇ ਮੀਨਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਰਿਸੋਰਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਮੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੇਬਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫॉर ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣ ਮੀਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਊ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਨੋਨ ਕਨਫਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਸਟ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਪਲਿਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਲਿਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ EMPLOYEES ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸਟ ਵੇਰੀਐਂਸ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਰ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਇਸਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ
जिस बेस ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਸ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਸਕਿਲਫੁਲ ਕੰਮ ਤੇ, ਅਨਸਕਿਲਫੁਲ ਪਰਸਨ ਅਨਸਕਿਲਫੁਲ ਕੰਮ ਤੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। उसके बाद है डिटरमाइनिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, प्लानिंग कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। जब भी किसी कंपनी की कैपेसिटी बात करेंगे उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट तो होती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ रही है प्लानिंग कैपेसिटी। जब भी कोई कंपनी कहता है प्लानिंग में जाएगी, मीन्स किसी काम के लिए वो प्लानिंग कर रही है, अपनी कैपेसिटी सेटअप करेगी। प्लानिंग में उसे कहता 4-5 पॉइंट हैं, वो उसको अपने माइंड में हमेशा रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी मूव करना चाहती है कंपटीशन लेवल में, उसको प्लानिंग पहले से सेटअप करनी होगी। विदाउट कोई कंपटीशन कोई भी कंपनी आगे नहीं जाती। एग्जांपल लिया इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, ये आपस में कहता कंपटीशन करते ही हैं। अभी वैसे एग्जांपल जेट एयरवेज वैसे बंद हो गई, लेकिन इन्होंने पुरानी एग्जांपल ली हुई है। भी इंडियन एयरलाइंस है चाहे जेट एयरवेज है, ये आपस में एयर ट्रेवलर्स में हमेशा कंपटीशन करते हैं, लेकिन इनको प्लानिंग करना पड़ता है ना। कैपेसिटी इनके पास क्या है, इनके कैपेसिटी अभी इनके पास जो जहाज है, एक जहाज में इतने इतने मुसाफिर जो है एक ही बार में उठा के वो ले जाते हैं, प्लस वो सर्विसेज कैसे देते हैं, वो इफेक्टिव कैपेसिटी होगी, लेकिन इनको प्लानिंग फिर भी करनी पड़ती है। प्लानिंग में इन्होंने फोरकास्टिंग में मान के चले इनको कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे 4W कह लेते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ मच, वो सारी चीजें इनको देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले इनमें पॉइंट आता है भी कहता कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी अगर अपनी कैपेसिटी को क्रिटिकल डिसीजन में इंक्रीज करना चाहता है, क्रिटिकल डिसीजन होते हैं ऐसी कंडीशंस आ जाए भी उनको लगता है भी हमें राइवलरी सिचुएशन में आ गए हैं जहां हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, तो उनको कुछ पॉइंट दिमाग में रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हेन का मतलब होता है कि हमें अपना एक्सपेंशन कब करना है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी प्लानिंग करेगी, एक्सपैंड होने के लिए प्लानिंग करती है। प्लानिंग करने का मतलब ये काम जैसे चल रहा है तो चल ही रहा है, फिर तो सभी लोग अपनी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा व्हेन, मीन्स किस टाइम पे जाके आप एक्सपैंड करोगे, क्योंकि कैपेसिटी में हमारे पास गैप हमेशा होता है। डिमांड जब हमारे पास एक्सीड होगी तब भी हम अपनी कैपेसिटी को हाउ मच इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो व्हेन का मतलब क्या होगा, हमारे पास टेम्पररी डायमेंशन होती है, ये हमेशा हमें दिमाग में रखना होता है। भी कोई टाइम तो ऐसा आएगा जब हम अपनी डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। रेगुलर एक जगह स्टेबल होकर तो नहीं चल सकते। आज आपने काम एग्जांपल, आपने छोटा सा बिजनेस किया हुआ है, आपको पता है मेरी शॉप में डेली बेस पे इतने कस्टमर आते हैं, आप डेली फोरकास्ट करके तो चलोगे भी मैं कुछ ना कुछ अपने कस्टमर को कोई नई सर्विस दूं, मे बी फ्यूचर में मेरा काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ग्राफ में दिखाया भी है, ग्राफ का डिमांड दिखाया उन्होंने, पहले तो नीचे चल रहा है फिर एकदम से ऊपर जाता है, मीन्स कंस्ट्रक्शन लीड टाइम, वो लीड टाइम जो है आगे बढ़ा, 1 2 3 4 मतलब चौथे टाइम पे जाके वो बढ़ गया डिमांड टाइम, मीन्स तीसरे साल के बाद उन्होंने दिखाते हुए बढ़ रहा है आपका। पहले 2 साल तो बिजनेस में कुछ नहीं हुआ। एग्जाम्पल पीछे जैसे इन्होंने जेट एयरवेज ली, जेट एयरवेज तो बंद होगी, इंडियन एयरलाइंस लेते हैं, इंडियन एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, उन्होंने सोचा अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या किया, इंटर सिर्फ कौन सी चली, एयर इंडिया चली, डिमांड तो उसी की बढ़ गई, तो उन्होंने लिखा भी हम अपनी डिमांड को कंप्लीट कैसे करेंगे, उन्होंने उसी चीज को सेटअप करना। इसी चीज को कहते हैं व्हेन, वो टाइम कैसा होगा हमारे बिजनेस में, हमें ये चीज हमेशा इफेक्ट देखता है। आप बिना कोई प्लानिंग के बिजनेस स्टार्ट कर दोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आपकी सोच शक्ति कैसी है। अगर आप इन चीजों को दिमाग में रखोगे भी फ्यूचर में, हमें लगता है भी, क्योंकि होती तो प्रोबेबिलिटी है, संभावना ही होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में येस नो चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी कैपेसिटी उस तरह से सेटअप रखनी पड़ती है। क्या आपके पास उतना फाइनेंस, उतना मटेरियल या फिर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उतने अवेलेबल हैं, जब भी एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है आप एक्सपेंड कर पाओगे कि नहीं। ये व्हेन वाला पॉइंट हमेशा माइंड में होना चाहिए, लेकिन ये टाइम कब आएगा इसको हमेशा माइंड में हमें रखना पड़ता है। एग्जाम्पल उन्होंने आगे ली हुई है पेज में, लार्ज कैपेसिटी क्रूसेस आर कॉमन इन इंडस्ट्रीज। मतलब लार्ज कैपेसिटी की बात देखें तो इसमें कहता कॉमन इंडस्ट्री में हमेशा चलता है, क्योंकि कई बार
डिमांड कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, कई बार कम भी हो जाती है, कई बार कस्टमर की इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कैपेसिटी हमेशा डिमांड, तो कंपनी हमेशा इस चीज़ को माइंड में लेके चलती हैं। टैक्टिक फॉर मैचिंग कैपेसिटी टू डिमांड, हमारे पास कहता टैक्टिस मीन, टैक्टिस का मतलब क्या होते हैं, रुकावटें ही होती हैं एक तरह की, मीन्स हमारी डिमांड को मैच करना। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सबसे पहले तो हमारे तो गुड फोरकास्टिंग होनी चाहिए। अगर तो फोरकास्टिंग गुड है, मीन्स सोचने वाला या फ्यूचर को देखने वाला बंदा बेस्ट है, वो तो इजिली बेस पे देख लेगा। अगर आपके पास फैसिलिटीज भी नहीं है, ये थोड़ी बंदे मान लो डिसीजन मेकर पर्सन रखे हुए हैं, फैसिलिटीज है नहीं, फैसिलिटीज मीन्स उनको टाइम टू पैसा मिलता नहीं, फिर वो बंदे क्यों आएंगे। तो आपके पास उतना फाइनेंस भी अवेलेबल होना चाहिए, प्लस आपके पास कंडीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि आप उसको कंडीशन को अवेलेबल कर सको, टाइम टू टाइम कैपेसिटी को कंप्लीट कर सको। कोई बंदा मान के चल रहा है भी हमारे पास फ्यूचर में इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, उस प्रोडक्शन को तभी कंप्लीट करोगे ना, प्रोजेक्ट तो लग गया लेकिन आपके पास फाइनेंस तो है नहीं, फिर क्या कैसे कंप्लीट करेंगे। तो कैपेसिटी में जरूरी है कि कहता आप हमेशा देखें कि आपके पास गैप और डिमांड कितनी होगी, कितना टाइम आपको लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, डिमांड कैसे जनरेट होगी। अगर वो टाइम मीन्स व्हेन का आपको पता होगा भी व्हेन कब वो कंप्लीट होना है, फिर तो आप कहता अपनी कंपनी की प्लानिंग को बेटर कर सकते हो। अगर इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप इस चीज को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। मीन्स आपको पता होना चाहिए भी आपकी डिमांड कब बढ़ेगी। पॉइंट सिंपल सा लास्ट में देखें तो यही आता है भी डिमांड कब बढ़ेगी। एग्जाम्पल कुछ भी हम ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं या कोई भी छोटे रिटेल बिजनेस की हम ले सकते हैं। सिंपल अगर कम्युनिकेशन में लेना, जियो की ले लो। जियो को पता था भी जब स्टार्टिंग में बिजनेस आया तो उनको तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी, उन्होंने फ्री में दिया लोगों को सिम, क्योंकि उस टाइम का उनको पता था टाटा इंडिकॉम, वीडियोकॉन, वोडाफोन, एयरटेल और भी काफी कंपनी, यूनिनोर, सभी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में थी और सभी कंपनियों को अलग अलग यूजर जो है पसंद करते थे। उन्होंने बोला मार्केट में हम उतारेंगे, हमें नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। उनके पास कैपेसिटी थी, पैसा बहुत है उनके पास, बिजनेस बहुत तगड़े हैं, उन्होंने क्या किया फ्री में उतार दिया मार्केट में। लेकिन उन्होंने सोच के रख लिया था, पहले ही सोच लिया था कब जाके हम अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ा देंगे। जब उन्होंने सभी पर टाइम 1-2 साल उन्होंने फ्री कर दिया, उनको लगा भी 1-2 साल में हमारी कंपनी इतना स्टैंड ले लेगी, फिर हमने कस्टमर को जितना मर्जी रेट लगा दे। अभी वो चार्ज तो करते ही है, रिचार्ज पे चार्ज है 3 महीने का प्लान रख दिया उन्होंने, लेकिन दूसरी कंपनी से फिर भी 40-50 रुपये कम है, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी तो पहले से सेटअप कर रखी थी। तो वो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें। जो दूसरा इसमें पॉइंट होता है, कहता अगर आपने प्लानिंग सेटअप करनी है तो आपको ये भी देखना होगा व्हाट काइंड, किस प्रकार की आपको कहता प्लानिंग करनी है, ये भी पॉइंट हमने देखना होगा। टाइम तो पता लग गया, दूसरा आपको देखना होगा कहता आप किस प्रकार की कैपेसिटी अपने बिजनेस में ऐड करने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको लिया, जैसे एग्जांपल जियो की लिए, जियो वाला बंदा कहता ये भी तो सोच के रखेगा भाई मैंने कैपेसिटी तो ऐड कर रहा हूँ, मेरे को पता है बिजनेस में एक्सपैंड करूंगा, किस प्रकार का बिजनेस ऐड करूंगा। मीन्स पहले तो उसको पता लगे फ्री में रखूंगा, फिर उन्होंने सोचा होता ना जब मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ, मुझे पता है कस्टमर वैसा जुड़ गए, किस प्रकार की फैसिलिटीज दूंगा। अगर मान लो जियो कंपनी कर लेती, दूसरी कंपनी जो रिचार्ज दे रही है वही कुछ कर देती, सभी का हो सकता था दूसरी कंपनी वाले फ्री भी होते, जो जिनको जियो फ्री बेस्ट लग रहा था हो सकता है वो बाहर भी चले गए। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि हम फाइबर सर्विस भी देंगे, इंटरनेट स्पीड ज्यादा देंगे अदर कंपनी से। तो ये चीजें हमेशा एग्जांपल के तौर पे हम बेस्ट में दे सकते हैं। कोई भी कंपनी जो है इस चीज को हमेशा देखती है। आप ये नहीं सोच के चलते कि आपने तो डिसाइड कर लिया भी आपकी प्लानिंग होगी, फ्यूचर में इतनी डिमांड आएगी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन किस दिशा में कंप्लीट करोगे, कुछ बेटर भी तो देना पड़ेगा, तभी आपकी कैपेसिटी जो है इफेक्टिव होगी। तो व्हाट काइंड भी हमेशा हमारे पास दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगर आप आईटी सेक्टर मीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाओगे तभी आपका बिजनेस जो है एक्सपैंड हो सकता है। थर्ड है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में कितना ज्यादा बढ़ाओगे, मीन्स कितनी ज्यादा एसेट टेकन करोगे। इन्होंने लिखा है once the decision to add assets has been taken, the question then arise how much capacity is needed। हमें कितना ज्यादा जरूरत होगी कोई काम बढ़ाने की। फिर दोबारा इसी में एग्जांपल जियो की चल रही, तो जियो में चलते हैं, क्योंकि जियो वालों ने इस चीज को पहले से सोचा था ना, उनको भी पता था भी वर्ल्ड में इंडिया लेवल पे कितना हमारा कस्टमर हो जाएगा। अभी लीडिंग कंपनी होगी, नंबर 1 होगी, तो मतलब मोर देन 50% कस्टमर जो जियो है, मान के चलें 60 या 70% कस्टमर जियो है, तो उनको ये चीज पहले से डिसाइड पहले से ही करनी थी ना भी हमें किस हिसाब से सर्विसेज। बहुत सारी कंपनी आज के टाइम में ऐसे ही फेल होती है, वो टावर नहीं लगा पाती। जियो में एक सर्विस है, आपके यहाँ पे एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, आपका नेटवर्क नहीं है, आप कॉल कीजिए, वो आपके एरिया में आके छोटा सा एक राउटर टाइप आता है,
आपकी छत के ऊपर लगा जाएंगे, उसका किराया आपको देते हैं। मीन्स उनके पास फैसिलिटीज है ना, उनको पता हाउ मच हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये चीज भी कहता आपको पहले से डिसाइड होगा, क्योंकि आपने एसेट्स तो कर ली, टेक ओवर कर लिया, अपने बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। आगे कस्टमर की फैसिलिटीज को कैसे कंप्लीट करना है, वो कैसे कंप्लीट होगा, कितना ज्यादा हमें करना पड़ सकता है। तो उन्होंने वो सर्विस सेंटर्स या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हर जगह पे इतने ही खोल दिए हैं, कहने की हाँ मतलब इतने ज्यादा एम्प्लॉयज है उनके पास, कोई सर्विस की कमी नहीं है। ये चीज भी हमेशा कहता डिफाइन की जाती है जब भी कोई कंपनी कहता अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी। अगर इफेक्टिव प्लानिंग करनी है तो उसको हाउ मच भी अपने माइंड में रखना होगा। हाउ मच के बाद इन्होंने लिखा है अभी कैपेसिटी प्लानिंग थ्रू द डिसीजन ट्री। लेकिन एक पॉइंट बीच में लिखा हाउ मच में कहता अगर मान लीजिए कभी डिसीजन ले रहे हैं तो आपको कोई सजेशन कहता कभी क्रिटिकल टाइम ऐसा भी आ जाता है, कुछ पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं। जैसे कहता आपने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी देखनी है, एक्सपेंशन का मतलब होता है आप जंप करना चाहते हो बिजनेस में। दूसरा कहता वेट एंड सी स्ट्रेटजी, कुछ कंपनीज कहता इस चीज को भी देखती हैं। हाउ मच में कहता है इस चीज को ध्यान में रख लेते हैं, वो वेट करते हैं, देखेंगे भी हमें कितने की जरूरत है, फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है एक्सपेंशन। मोस्टली कंपनी एक्सपेंशन पे ही चलती है, अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। उनको पता होता है अगर हायर डिमांड आ गई तो हम कंप्लीट कर दें। वेट और सी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल सिंपल सी इकोनॉमी भी लेते हैं, नोटबंदी की। गवर्नमेंट को पता था भी नोटबंदी एकदम से कर देते तो बिजनेस एकदम बंद हो जाते, दुनिया जो एकदम खड़ी हो जाती। उन्होंने नोट छापने पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे, बिना बताए नोट छप रहे थे, छपते छपते इतने हो गए, अब सभी स्टेटों में नोट पहुंच भी गए थे। फिर उन्होंने मार्केट में पहुंचा दिए और बैंकों को बोल दिया कि अब बंद कर दो, आप सुबह बांटना स्टार्ट कर दो। अगले दिन से ही बैंकों से नोट मिलने स्टार्ट हो गए थे। कोई ऐसा बैंक था ही नहीं जहां पे नोट नहीं मिल रहे थे। तो वो चीज कहता होती है, अगर वो सोच कर लेते पहले एक बार अनाउंस कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना पैसा इकट्ठा होगा, फिर बनाएंगे उसने नोट, फिर वो गड़बड़ हो जाती थी। तो इस चीज को कहता बिजनेस को पहले ही, ये बिजनेस की तरह ही था एक तरह, क्योंकि आरबीआई का मेन बिजनेस तो उसी में सारा देश चलाना है। गवर्नमेंट ने तो सेटअप कर दिया था भी ये काम ऐसे करना है। तो वो चीज कहता है पहले से ही हमें देखना पड़ता है इस चीज के बारे में, हम कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं। उन्होंने इतना नोट बना के रखा, उनको लगा मार्केट में इतना तो कम से कम चल जाएगा। चलने के बाद फिर भी जरूरत पड़ती रही, फिर वो छपता रहा, काम चलता रहा मार्केट में। मीन्स मार्केट वैसे ही दोबारा लाइन पे आ गई। फिर है कहता कैपेसिटी प्लानिंग थ्रू द डिसीजन ट्री। कैपेसिटी प्लानिंग कहता आप डिसीजन ट्री की तरह भी कर सकते हैं। डिसीजन ट्री के बारे में हमने पहले पढ़ा है शायद। डिसीजन ट्री क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसमें चांस नोट एंड नोट्स होते हैं। चांस नोट्स जो होते हैं वो स्क्वायर से दिखाए जाते हैं। स्क्वायर में ऐसा स्क्वायर बॉक्स होता है, स्क्वायर बॉक्स से हमारे पास एंड नोट्स होते हैं जिनको हम राउंड सर्कल में दिखाते हैं। वहां से हमारे अलग अलग बंदे कहता डिसीजन लेने वाले निकलते हैं। मान लीजिए आपने कहता कोई काम स्टार्ट कर लिया, आज पे वह चांस नोट जरूर निकलेंगे, क्योंकि जब आपने कोई एक पॉइंट से बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके साथ जो बंदे काम कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल देंगे जिससे कहता चांस बनेंगे, कोई ना कोई मौके बनेंगे जिससे हम काम कर सकते हैं। डिसीजन ट्री उसी बेस पे काम करता है। डिसीजन ट्री स्टार्ट तो हमारा इसी बेस पे होता है, यहां से एक जगह से स्टार्ट होगा आपका डिसीजन ट्री जो है, इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग मीन्स हम उसको दिखाते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिसीजन ट्री ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। डिसीजन में क्या होता है, जब कोई बंदा, एक बंदा डिसीजन लेने वाला है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जब वो बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आगे वाला बंदा कुछ ना कुछ सोच के बताएगा। फिर आगे वाले की सोच के अकॉर्डिंग 2-3 बंदे उसके साथ और जुड़ेंगे। तो इसी तरह के अंदर बिजनेस में एक्सपैंड होता है। मोस्टली अगर मान के चले तो जियो का अगर जैसे सर्कल बढ़ा तो उसका बिजनेस ये था, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस सेटअप कर दिया। आगे काम करने वाले मैनेजर्स या फिर जो डायरेक्टर्स जो उन्होंने सेक्रेटरी रखे, वो बंदे उनके माइंड जैसे आगे चलते चले गए, उन्होंने बिजनेस वैसे वैसे एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने पूरे इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप ऐसे कर दिया कि दूसरी कंपनियां फेल ही कर दी। वो डिसीजन ट्री के बेस पे ही काम हुआ है। ड्रॉइंग ए डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री देखो इन्होंने दिखाया है, वो भी ऐसे ही बनता है। इन्होंने आगे कुछ मोस्टली डिसीजन ट्री हमेशा इसी तरह से ही बनता है। स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, एक जन से स्टार्ट होगा, हम देखेंगे भी हमने किस दिशा में पढ़ना है, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा ये ग्रोथ के ही साइन होते हैं। ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे राउंड लगाओ, इसके बाद और आगे बढ़ा दो, राउंड लगाने के बाद 3-3 चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो डिसीजन ट्री कोई एक जगह में नहीं होता। डिसीजन ट्री अपनी शेप के अकॉर्डिंग बढ़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, एंड नहीं कभी होता है इसमें।
हम बोले भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक होगा, वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए होता है, भी एक जगह से स्टार्ट करके एक जगह पे खत्म कर देना है। क्योंकि जब कोई बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस में डिसीजन ट्री, बिजनेस कभी भी कोई बिजनेस बंद होने के लिए स्टार्ट नहीं होते, बिजनेस तो बढ़ने के लिए होते हैं। तो वो आपकी कहता है इफेक्टिव कैपेसिटी अगर आपने चेक करनी है तो आप डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो उन्होंने एग्जांपल ली हुई है, कोई ऐसे फॉर्मूले दिखाए हुए हैं, फॉर्मूले की हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कहता है जब भी हम डिसीजन ट्री की कैपेसिटी की बात करेंगे, हमें एक पॉइंट दिमाग में रखना होगा, मेक और बाय डिसीजन। जब भी कैपेसिटी की बात करोगे आपने देखना होगा भी आपने कोई चीज बनानी है या फिर खरीदनी है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ये होते हैं अपने सीजन में होता है कि कोई भी मार्केट में चीज की डिमांड आई है, हम अपना बना के देंगे क्योंकि हमारी कंपनी का नाम चलेगा प्लस हमारी क्वालिटी चलेगी। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मार्केट में इस चीज की डिमांड आई है, हम बाहर से बनवा के उसको खरीदेंगे और अपना नाम लगा के मार्केट में सेल कर देंगे। ये चीज हमेशा बिजनेस को इफेक्ट करती है। प्रोसेस अंडरलाइंग ऑल एक्टिविटी हैंस ऑल फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ये डिसीजन कहता है हर एक एक्टिविटी और हर एक फंक्शन में कंपनी में देखा जाता है, हर एक चीज। क्योंकि कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ये नहीं होता कि वो सारी चीजें एक ही कंपनी बना लेगी। आजकल के टाइम पे बिजनेस में तो है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, अपने पार्ट्स बाहर से असेंबल करवाती हैं और अपनी कंपनी में लाके एक जगह पे उनको फिट करके आगे मार्केट में उतारते हैं, नाम उनका चल जाता है, हर जगह पे नाम भी कंपनी का लग जाता है। तो ये डिसीजन कहता है हर एक कंपनी अपना डिसीजन करती है, लेकिन ये डिसीजन कहता है क्रिटिकल हो सकते हैं क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनियां उनकी रिक्वायरमेंट इंटरनल डिपेंड करती हैं, उनकी कंपनी अंदर डिपेंड करेगी उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है। कुछ पॉइंट लिखे भी उनके पास। सबसे पहले प्रोप्राइटरी आइटम्स। प्रोप्राइटरी आइटम्स क्या होती हैं? जिनके ऊपर हमारा मालिकाना हक होता है, उनको हमने बाहर से बनवाना है या खुद बनाए, इनके ऊपर डिसीजन लेना तो जरूरी है। दूसरा स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स जिसके बेस पे पूरी मशीन काम करती है। अगर वो कंपनी बोले कि मैं बाहर से बनवाऊं, हो सकता है बाहर से गड़बड़ हो गया आगे तो हमारा तो कंपनी का नाम खराब। तो बहुत सारी कंपनी क्या कोशिश करती है स्टैंडर्ड जो चीज लगनी है वो खुद ही असेंबल करती है। जैसे कि इंजन उन्होंने खुद सेटअप करना है तो वो खुद ही सेटअप करेंगे। छोटे मोटे पार्ट। उसके बाद स्पेशलिटी कंपोनेंट्स। स्पेशल कंपोनेंट मींस स्पेशल कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके बेस पे वो चीज चलनी नहीं है, कंपनी खुद सेटअप करती है, इसको तो हम खुद ही बनाएंगे, हमारे खुद ही इंजीनियर डिजाइन करेंगे, वो हम देखेंगे क्योंकि इसके बारे में उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं। उसके बाद कॉमोडिटी टाइप आइटम्स। कॉमोडिटी टाइप मींस एक बिजनेस में हमारे पार्ट्स बनाने हैं, वो कौन कौन चीजें, इनके बारे में वो डिसीजन ले लेते हैं। तो कंपनी का तो कोई भी जब भी आएगी तो उनको इन चीजों के ऊपर डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। जब भी डिसीजन लेंगे तो हमारे पास एक्टिविटीज देखनी पड़ती है, कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज होती हैं भी जो हम जिनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, नॉन कोर होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते लेकिन उनको पता है इनके ऊपर काम तो करना पड़ता है। तो ये चीज उनको कंपनी को पहले से डिसाइड करना पड़ता है, मीन्स कौन सी चीजें हमारे लिए बेस्ट होंगी, कौन सी चीजें हमारे लिए कम बेस्ट है। काम तो कंपनी का सारा ही बेस्ट होता है, ये नहीं कह सकते भी कोई प्रोडक्ट उनके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो भी पार्ट्स उन्होंने लगाए होते हैं उनके पार्ट्स के बेस के ऊपर ही उनका प्रोडक्ट मार्केट में आता है। लेकिन उनको ये देखना होता है कि किसके ऊपर ज्यादा हमें प्रेशर देना है, मीन्स कौन चीजें हम खुद बनाएं, कौन सी चीजें बाहर से खरीदें। इसके लिए भी जरूरी होता है कि हमारी परफॉर्मेंस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक होती है स्ट्रेटजी, क्या रूल्स, क्या प्लान हम सेट करेंगे, क्या डिसीजन हम लेंगे जिसपे हमारा ये काम होगा। दूसरा होता है और ऑपरेशनल का मतलब कंपनी में काम किस बेस पे होगा। थर्ड होता है भी ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपकी संस्था किस बेस पर डिपेंड करती है, मीन्स आपके पास रिसोर्सेज क्या है, तभी कोई कंपनी हमने कहता है कैपेसिटी जो है आगे बढ़ा सकती है। तो प्लानिंग को सेटअप करना है तो ये सारे डिसीजन उनको अपने माइंड में रखने होंगे। व्हेन, हाउ मच, व्हाट, है ना। उसके बाद था व्हाट, एक था मेक और बाय डिसीजन, एक था डिसीजन ट्री। कोई भी कंपनी अपनी इफेक्टिव प्लानिंग कैपेसिटी करना चाहती है तो ये 5 पॉइंट उसको अपने माइंड में रखने होंगे। फिर हमारे पास है कहता डिवेलपिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव। अपनी कैपेसिटी के अल्टरनेटिव को डिवेल्प करना है तो आपको क्या चीजें करना, पॉइंट रखने होंगे दिमाग में। सबसे पहले डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी इन सिस्टम। अपने सिस्टम में कहता फ्लेक्सिबिलिटी को जरूर डिजाइन कीजिए। आप किसी एक दिशा में काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, मे भी कहता आपकी कैपेसिटी डाउन हो सकती है। अपने साथ अल्टरनेटिव जरूर रखिए। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। मीन्स आप अगर कोई एक मैंने मान लो डिजाइन जैसे बना लिया डिसीजन ट्री, मैं बोलूं मैं इसी में ही काम करूंगा, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अगर इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो आप बढ़ा सकें भी, किसी एक ही जगह पे काम करना है ऐसा ना हो। दूसरा टेक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इनटू अकाउंट। हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मार्केट में उतार रहे हैं,
उसका लाइफ साइकिल अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आएगा उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज भी आएगी, फिर मैच्योरिटी स्टेज भी आएगी, फिर लास्ट में डेक्लाइन स्टेज भी आनी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट पूरी लगातार चलता रहेगा कभी नहीं हो सकता। टेक ए बिग पिक्चर अप्रोच टू द कैपेसिटी चेंज। हमेशा अपने माइंड में बिग पिक्चर को रखिए, अप्रोच रखिए भी कितने चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने बोला लाइफ साइकिल दिमाग में रख रहे हो, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए भी चेंजेस जब मैं करूंगा तो कौन कौन सी चीजें चेंज हुई। ये नहीं होता कि मैंने काम चेंज करना भी मैं सुबह बैठा डिसीजन ले लिया भी चेंज कर दो काम कर देंगे हम ऐसे, नो। क्योंकि जो आपके साथ आगे बंदे जुड़े हुए हैं तो पूरी का पूरा सिस्टम आपको अपने दिमाग में रखना होगा, तभी जाके कहता आप अपनी कैपेसिटी को अल्टरनेटिव में डिवेल्प कर सकते हैं। अटेम्प्ट टू स्मूथ आउट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम ये मान के चलेंगे सारा काम स्मूथिंग बेस पे हो जाएगा, नहीं। स्मूथ आउट कंडीशन को अपने साथ में जरूर रखिए भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, क्योंकि सभी लोग आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे या सारे काम एक बार में आपने डिसीजन ले लिया वैसे हो जाएंगे, मैं भी नहीं हूं ऐसा। आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग लेवल। हमेशा आइडेंटिफाई करके रखिए आपकी कंपनी में जो ऑप्टिमम लेवल है, मीन्स आपको अपने काम में बेस्ट पता है, जो हमारे पास बेस्ट स्किलफुल, जैसे बोले भी कोई स्किलफुल पर्सन है या कोई ट्रेंड पर्सन है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको पहले से ही डिसाइड करके रखिए उनके हमने कैसे यूज करना है, मीन्स प्रॉपर यूज कैसे करना है, वो चीजें पहले से डिसाइड करके रखिए। चूजिंग ए स्ट्रेटजी इफ एक्सपेंसिव इन्वॉल्व। हमेशा कहता है स्ट्रेटजी को चूज कीजिए जब आपको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप काम को इम्प्रूव करेंगे, जब बढ़ाएंगे, तो आपको इस चीज के बारे में पहले से क्लियर होना चाहिए भी कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है। अल्टरनेटिव में आपको पता होंगे भी हमारे पास अल्टरनेटिव पड़े हैं, तो किस चीज को हमने यूज करना है ये पहले से डिसाइड कर लीजिए। चैलेंजिंग ऑफ प्लानिंग सर्विस कैपेसिटी। प्लानिंग सर्विस कैपेसिटी में हमारे पास चैलेंजेस क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होता है। जैसे एग्जांपल मैंने हॉस्पिटल की ली थी, हमारे हॉस्पिटल में कितने बेड है, होटल है, होटल में कितने टेबल लग सकते हैं, ये कैपेसिटी होती है सर्विस में। सर्विस में क्या था, कौन कौन सी चैलेंजेस हो। सबसे पहले बिल्ड इनफ कैपेसिटी टू मीट एक मैक्सिमम डिमांड। हमारे पास क्या था, पहले तो हमें ये देखना होगा कि डिमांड कितनी होगी। ये किसी भी कंपनी के लिए, मीन्स किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज होता है। अगर डिमांड आ गई ज्यादा, मान लो एग्जाम्पल एक पैलेस है, उसमें पता है भी 100 बंदों का अरेंजमेंट हो सकता है। कोई बंदा मार्केट में आ जाए भी हमें 150 बंदों का प्रोग्राम करना है, क्या आपके पास सर्विस की उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, ये चैलेंज होता है हमेशा। दूसरा हम लिखा है यूज डिमांड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जातो कहता आप अपने डिमांड को मैनेजमेंट प्रिंसिपल होने आपके पास होना चाहिए, मीन्स आप उस सर्विस को कैसे पीक टाइम पे लेके जाओगे। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं मान लो कि बंदा मेरे 100 बंदे की कैपेसिटी है, तो मैंने 150 बंदे एडजस्ट करने हैं, फिर आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कैसे आप उसको मैनेज करोगे, ये चीज हमेशा डिपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल ये, ए रेस्टोरेंट दैट हैज लॉन्ग वेटिंग लाइन्स इन लाइकली टू लूज बिजनेस। कहता है एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसके पास लॉन्ग वेटिंग लाइन्स है, उसका मतलब उसके बाद डर होता है कि बिजनेस लूज भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर लाइनें लगी रहेंगी किसी टाइम पे जाके तो लोग ऐसे बन जाएंगे यार भी अब छोड़ यार, एक आधी बार खा लिया बस बहुत है, इसके बाद अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, कोई और फाइंड करते हैं। कोई ऐसा बिजनेस होगा, कोई रेस्टोरेंट ऐसा होगा जिसमें लाइनें चलती होंगी। मोस्टली रेस्टोरेंट चाहे ऐसा कोई बिजनेस चाहे कोई पैलेस होंगे, वो चलते हैं कि हमें लाइन सिस्टम खत्म करना है। सर्विस काउंटर बढ़ाइए, ज्यादा जगह एक्वायर कर लीजिए। अगर वेटिंग लाइन रही तो हमारा बिजनेस जो है लॉस हो सकता है, क्योंकि लोगों की सोच कभी भी बदल सकती है, तो हमेशा इस चीज को हमेशा माइंड में रखा जाता है। फिर हमारे पास आता है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस होता है कि हमारा प्रॉफिट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है। इट इज ए टेक्निक दैट एग्जामिन चेंजेस इन द प्रॉफिट इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंजेस इन सेल वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्राइस। सेल प्राइस और कॉस्ट में चेंज आने से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंजेस आया, उस चीज को फाइंड करने को बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मैंने पहले बोला कि आपके प्रोडक्ट मींस कॉस्ट में, सेल में या प्रॉफिट वॉल्यूम में, प्राइसेस में चेंजेस आने से आपका प्रॉफिट कितना कम बढ़ती हुआ, इसको सीवीपी एनालिसिस बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दिमाग में रखनी पड़ती है। सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस टू इम्पैसेस, किन प्रोडक्ट के ऊपर आपने मेन दबाव रखना है, मीन्स अपना ध्यान रखना है। दूसरा, कितनी सेल की वैल्यू आपने हर साल अचीव करनी है, एवरी टाइम पे अचीव करनी है। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कितनी आपको लगता है कि आपको इनकम होनी चाहिए, क्योंकि आपको लॉसेस को भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस भी साथ में आते हैं। कितनी फिक्स कॉस्ट कहता है आपकी हर साल बढ़ेंगी, जब भी आपने कोई प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो ये सीवीपी एनालिसिस में डिसाइन किया था। कितना आपने बजट बना के रखा हुआ है, एक्सपेंसिव तो लगने है उनके लिए, बजट कितना बना के रखा हुआ है, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे जब भी कहता आपने सीवीपी एनालिसिस करना है। सीवीपी एनालिसिस का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट देखना है तो
टोटल खर्च, इनकम माइनस टोटल खर्चे, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर प्रॉफिट और तरह से भी दें, मगर सीबीपी एनालिसिस का इन्होंने फॉर्मूला जो दिया आपके पास सिंपल सा दिया ही नहीं है, चलो लीव। एक है ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला इसमें कहीं दिया नहीं है। एक है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट, नो प्रॉफिट लॉस होता है। बहुत सारी कंपनी इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है भी किस पॉइंट पे जाके हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कोई प्रॉफिट में हमें कोई लॉस भी नहीं होगा। ये पॉइंट्स हमें हमेशा दिमाग में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर ये पॉइंट दिमाग में नहीं रखेंगे तो कोई कंपनी कई बार खर्चे ज्यादा कर जाती है, उनके लॉस में चले जाते हैं। कोई भी कंपनी खर्चों में उतने ही रखती है, मेंटेन करके रखती है, ताकि हमें प्रॉफिट चाहे ना हो लेकिन हम उससे नीचे भी ना जाएं। तो जितने हमारे खर्चे हैं कम से कम उतने तो कवर हो जाए। बहुत सारे बिजनेस में ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। अगर आपको अपनी कैपेसिटी सेटअप करनी है तो उस कैपेसिटी में आपको दिमाग में ये रखना होगा कि आपका किस पॉइंट पे जाके ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा माइंड में रखना होगा, ठीक है।